ओडीआई? क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है? आप कैप्टन हैं, आप बताइए। इतने साल से वो वहीं पे खेलते आ रहे हैं तो वहीं पे खेलेंगे, वो ऑब्वियस सी चीज है। Yeah, pretty straightforward that, right? But yeah, just before the announcement, like a day before the announcement, is when I was told that the opportunity might come and I might have to leave. So yeah, I have captained the side before, and it's something that's very exciting. And yeah, I look forward to enjoying that responsibility. I've always enjoyed responsibility, and go out there and making the right decisions for the team, and that's about it. I don't think too much about it. I obviously have Rohit, Virat, Jaddu, all the senior players around me who will help out, and how we've all played our cricket is to think of it as we're all leaders and we try and do the best for the team, and I think that continues whether I'm captain or someone else is captain. It's always a collective effort to doing something in a direction that we have a bigger goal, and what the right direction is for ODI team and for Indian cricket. That's what we all try to do. We saw you watching the second test. You got out playing with the East. We've seen you T20 ODI when you are लगाते थे. So is there a regret looking back that you didn't take that option of going down there, and we will be seeing you here doing that more aggressively? No, there's no regret of not trying a different shot. There's a regret of executing what I did, and it's a test format, and at the stage that I was playing, there was only it was the last few overs of the day, and I don't think that's the right time for me to try and step down and hit the bowler for a boundary. And going down, and then you used to take yeah, I mean, looking back, yes, maybe I would have, but it was only the second ball of the over, and it was just yeah, I mean, if I'd stepped down and gotten out, maybe that would have been a question mark in my own head as to whether that was right or wrong. So at that point in time, I think defending was the right option to do, which I didn't do well enough. So that's what I take away from that dismissal. राहुल, ये महेंद्र सिंह धोनी का शहर है, यहाँ क्रिकेट सर चढ़कर होता है, क्या होता है? दर्शकों में उत्साह रहेगा। नहीं, क्या होता है सर चढ़कर क्रिकेट यहाँ होता है, मतलब दीवानगी है, तो दर्शकों में उत्साह भी रहेगा, कितना फायदा मिलेगा टीम? ऑब्वियसली सर, देखिए, हम सब उनके अंडर खेले हैं, हम सब उनके मतलब फैन भी रह चुके हैं और साथ में खेले हैं, तो वी आर ऑल दोस्त है, फ्रेंडशिप है, एंड टू नो समवन लाइक MS इज क्या बोलते हैं, बहुत ही हैप्पी, और वो एक opportunity मिला है to know someone as big as MS and someone who's so successful as an Indian player, और we all respected him as a human being. So अगर वो भी आएंगे मैच देखने तो और क्राउड को और हम लोग को एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो हैप्पी है, तो क्राउड भी आएंगे तो हम लोग को भी मज़ा आएगा यहाँ खेलने, एंड होपफुली वी कैन विन द गेम, पुट अप अ गुड परफॉर्मेंस, और क्राउड को भी एंटरटेन करे, और MS धोनी को भी he'll also feel happy that we won the game. एक सवाल मेरा है कि रुकिए सर, इनके बाद पूछ लीजिए. नंबर 6 और 7 पर फिनिशर की ग्रुप में कौन है? मैम, जैसे मैंने उनको भी बोला, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ एग्जैक्ट 11, बट आई विल बी बैटिंग इन द सेम पोजीशन. तो मैं नंबर 6 पे खेलता आ रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी से, तो आई विल बी बैटिंग देयर, एंड वॉशिंगटन सुंदर है, नितेश रेड्डी है, तो ये सेंस है हमारे पास. तो विल सी व्हाट द बेस्ट 11 इज, और विल मेक दैट डिसीजन इन द इवनिंग, और कल आप लोग को पता चलेगा. सबको मिलेगा, वो जो बोलेंगे उनका ही आंसर दे दूंगा. मेरा सवाल है कि भारतीय बल्लेबाज पहले स्पिनर खेलने में बहुत सिद्धस्त माने जाते थे, बहुत बेहतरीन प्लेयर माने जाते थे स्पिनर, और सबसे बेहतरीन पाने अगर स्पिनर को खेलने का तो बेंगलोर में गावस्कर का 96 जो बनाए थे पाकिस्तान ने, जो अब तक का बेहतरीन
पारी माना जाता है किसी स्पिनर में, क्योंकि उस समय गेंद काफी घूम रही थी बैंगलोर में। तो अब क्यों भारतीय बल्लेबाज नहीं खेल पा रहे हैं स्पिनर, और पूरी तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ स्पिनर पिच पर रहे हैं? सर ये तो आंसर, मैं डेफिनेटिव आंसर तो नहीं बोल सकता। मैं यही बोल सकता हूं कि हम ऑब्वियसली अच्छा नहीं खेल पाए हैं एक दो सीरीज से स्पिन बॉलिंग, और वो हम समझते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि ये एक पार्ट ऑफ आवर गेम है। जो अब जो टीम में बैट्समैन है, इट इज पार्ट ऑफ लाइक रिकग्नाइजिंग एंड रियलाइजिंग कि हम अच्छा नहीं खेल पा रहे स्पिन। तो इट इज यही है कि हम अगर गावस्कर सर ही हो गए तो उनसे बात करके सीख सकते हैं, या वी ऑलरेडी ट्राइंग टू फाइंड वेज कि कैसे हम बेटर खेल सकते हैं स्पिन को। तो वो ओवरनाइट तो होगा नहीं, एंड मेरे को आंसर नहीं पता कि पहले क्यों खेलते थे अब क्यों नहीं खेलते। बहुत सारे रीजन है इसके लिए, बट हम यही सोच सकते हैं कि हम कैसे बेटर कर पाए एज प्लेयर्स, हम इंडिविजुअली हाउ कैन वी गेट बेटर। एंड जब ऐसे सिचुएशन वापस आएगा 6-7 महीने में, हमारा सीरीज है श्रीलंका में, उसके बाद इंडियन होम सीरीज है ऑस्ट्रेलिया से, सो कैसे हम बेटर कर पाए, व्हाट आर द टेक्निकल चेंजेस वी नीड टू मेक, ये सब चीजें हैं दैट विल इंडिविजुअली ट्राई टू सीक आंसर्स एंड ट्राई एंड डू बेटर, एंड दैट्स ऑल वी कैन डू। एंड ऑब्वियसली जैसे आपने कहा पहले बहुत अच्छे स्पिन खेलते थे, तो मे बी विल रीच आउट टू दोज प्लेयर्स, एंड जो हमारे सीनियर्स है तो उनसे थोड़ा मतलब सीखने की कोशिश करेंगे। आपका अभी तो विदेश में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, तो नहीं करूं? थैंक यू सर, थैंक यू। सवाल ही नहीं हो रहा है आपका। थैंक यू। थैंक यू गैस। All the best.